یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے, اس پہ باقاعدہ ملینز اینڈ ملینز آف لوگوں کے سرویز کر کے ان کے باقاعدہ آنسرز لے کر یہ ریسرچ کی گئی ہے کہ جو پیسمسٹک نیگیٹو تھنکنگ والے لوگ ہوتے ہیں وہ نمبر 1 ان کا تھنکنگ سٹائل پرماننٹ ہوتا ہے. پرماننٹ سے کیا مراد ہے, وہ ہر پرابلم کو پرماننس کے اینگل سے دیکھتے ہیں. پرماننس کے اینگل سے کیا مراد ہے, فار ایگزامپل اگر وہ کسی پرابلم سے گزر رہے ہیں تو وہ اس کو پرماننس کے اینگل سے اس طرح دیکھیں گے کہ یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا. سمجھ رہے, ان کا دماغ انہیں کیا کہے گا, یہ پرابلم ہمیشہ رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ بزنس ڈاؤن چلا گیا تو پیسمسٹ جو تھنکنگ والے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے دیکھیں گے کہ اب یہ ڈاؤن ہی رہے گا, اب یہ اپ نہیں آنے والا, ٹھیک ہے, اب یہ ختم ہو چکا ہے, پرماننٹ ہے یہ پرابلم. آن دی ادر ہینڈ آپٹمسٹک والے لوگ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اس کا اپوزٹ کیا ہے پرماننس کا, ٹیمپرری, کہ اٹس جسٹ اے فیز, اٹ ول پاس. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے. ٹھیک ہے, یہ مائنڈ سیٹ بنانا پڑتا ہے, باقاعدہ پریکٹس ہے. تو پیسمسٹ والے پرماننس کے ساتھ دیکھتے ہیں, آپٹمسٹ والے ٹیمپرری اینگل سے دیکھتے ہیں. اوکے, دوسرا موازنہ, پیسمسٹک تھنکنگ سٹائل والے پرویسو ہوتے ہیں. پرویسو سے کیا مراد ہے کہ وہ اس کو ہر چیز پہ اپلائی کر دیتے ہیں, یونیورسل بنا لیتے ہیں اس پرابلم کو. فار ایگزامپل آپ پڑھائی میں نہیں اچھے, پیسمسٹ انسان اس کو کیسے دیکھے گا کہ میں ہسبینڈ بھی اچھا نہیں بنوں گا, وائف بھی اچھی نہیں بنوں گی, باپ بھی اچھا نہیں بنوں گا, ماں بھی اچھی نہیں بنوں گی, بیٹا بھی اچھا نہیں بنوں گا, بیٹی بھی اچھی نہیں بنوں گی, انسان بھی اچھا نہیں بنوں گا. یعنی ایک بندے کو پروگرامنگ سمجھ نہیں آ رہی, اس کے زبردستی پہ ایڈمیشن ہو گیا ہے آئی ٹی میں. مجھے بھی پروگرامنگ سے نفرت تھی, 2 سبجیکٹ تھے میکینیکل انجینئرنگ میں, پروگرامنگ میرے بہت برے گریڈز تھے. لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں میں میتھ میں برا ہوں, اس کا یہ مطلب تو نہیں میں انسان برا ہوں. اگر آپ کسی سپورٹس میں اچھے نہیں ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے آپ انسان اچھے نہیں ہیں. تو پیسمسٹ لوگ یونیورسل لے لیتے ہیں اس پرابلم کو کہ اچھا میں اس میں اچھا نہیں تو اب میں کسی بھی چیز میں اچھا نہیں. سمجھ رہے, آپٹمسٹک لوگ اس کو لوکل لیتے ہیں کہ یار جو مسئلہ ہے اس کو وہیں تک رکھو. سمجھ رہے, کوئی بات نہیں. کچھ لوگ جو ہے شاید ایک کسی ڈپارٹمنٹ میں اتنے اچھے نہ ہو, ان کو ہیلپ چاہیے اس ڈپارٹمنٹ میں. کچھ لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں بہت اچھے ہو. جیسے اکثر میں آپ کو مثال ہم دیتے ہیں, ایک بندہ تقوی میں بہت زیادہ ہے, ضروری نہیں وہ کمپیٹنٹ بھی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کی ذمہ داری لگائی, تقوی بھی دیکھا, کمپیٹنس بھی دیکھی. ٹھیک ہے, جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو خالد بن ولید نہیں بنایا, ان کا تقوی بہت تھا, علم بہت تھا, لیکن ان کی کمپیٹنس جنگ میں نہیں تھی. تو اب ابو ہریرہ یہ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ عہدہ ہی نہیں کبھی دیا جنگ کا, تو اس کا مطلب میں کیا ہوں, فیلئر. اللہ معاف کرے, ایسا تو نہیں. آپ کا اچھا ٹیلنٹ ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں پہچان لیتے تھے لوگوں کے ٹیلنٹ کو. تو جو آپٹمسٹ لوگ ہیں وہ اس معاملے کو وہیں تک رکھتے ہیں جہاں تک وہ معاملہ ہے, بس اس میں خراب ہوں, ٹھیک ہو جاؤں گا, انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر لیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا موازنہ, پرسنل لیتے ہیں ہر چیز کو. کیسے, ہر چیز کا بلیم اپنے پر, یہ میری فالٹ ہے, اس میں میری کوئی فالٹ ہوگی. ٹھیک ہے, کبھی کبھی پرسنل لینا بھی چاہیے, اچھی بات ہوتی ہے, لیکن ہر چیز کو پرسنل لینے سے کیا ہوگا, آپ گرو نہیں کر پائیں گے, آپ کا کانفیڈنس شیٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ موازنہ کریں تو جو آپٹمسٹک والے ہیں وہ پرسنل نہیں لیتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹائرلی میری فالٹ نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر انٹرویو فیل ہو گیا آپ نے بڑی اچھی تیاری کی تھی اور آپ کی وہ ڈریم جاب تھی, لیکن آپ انٹرویو میں فیل ہو گئے. آپ پیسمسٹ تھنکنگ یہ ہے کہ میری غلطی ہے, میرے سے ہی کوئی غلطی ہوئی ہے. آپٹمسٹک تھنکنگ یہ ہے کہ یار میں نے اچھی تیاری کی تھی, شاید مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, لیکن انہوں نے مشکل سوال, کچھ ایکسکیوز بنایا جا سکتے نا اپنے آپ کو تھوڑی تسلی دینے کے لیے کہ بڑے مشکل سوال تھے, کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آئی ول پریپیئر بیٹر. تو وہ چیز آپ کو زیادہ فائدہ دے گی. ٹھیک ہے, سمجھ رہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں, یہ ایک باقاعدہ کوگنیٹو ڈسٹورشن بھی ہے, جو ہر چیز کو پرسنل لے لیتے ہیں, معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں بلا وجہ دوسروں سے, بلا وجہ کی معافیاں, ہر چیز پہ معافی, ہر چیز پہ معافی. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی مینٹین کرنے کا بھی حکم دیا ہے. اگر آپ کی غلطی آپ 1-2 بار سوری کریں, اس کے بعد آپ آگے موو فارورڈ کریں. ٹھیک ہے نا. اتنی زیادہ معافیاں مانگنا, اس سے آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی, اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نہیں ہے کہ اتنا زیادہ ڈور میٹ بن جاؤ. اپنی سیلف کیئر بھی تو کرنی چاہیے نا انسان کو. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کو بہت پرسنل لے جانا کہ میری فالٹ ہے, وہ پیسمسٹ لائف.
आपका है। जैसे आपको कोई बीमारी हो गई, अब आप ये सोचें यार मेरी फॉल्ट है, काश मैं ये नहीं करता, काश मैं वो ना करता, मैंने ये क्यों किया, तो आप आगे बढ़ सकेंगे? कभी नहीं बढ़ सकेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया, भाई तुम सिंपली कहो कद्दर अल्लाह व माशा फ़अला, कि जैसा अल्लाह ने लिखा था वैसा हुआ है। तो आप रिलैक्स हो जाएंगे कि यार ये लिखा हुआ था मेरी किस्मत में, ये चीज मुझे कुछ सिखा रही है, लेट्स लर्न इट। ये छोड़ो फॉल्ट किसकी थी, मेरी फॉल्ट थी, किसकी फॉल्ट थी, आगे बढ़ो। ऑप्टिमिस्ट लोग इस तरह से सोचते हैं, ठीक है। 3, चौथी और आखिरी, जो पेसिमिस्टिक थिंकिंग के लोग होते हैं उनके थॉट्स अनकंट्रोलेबल होते हैं, वो अनकंट्रोलेबल इमेज देते हैं उस प्रॉब्लम को। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट दिस प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नथिंग, मैं कुछ भी नहीं कर, ये प्रॉब्लम मेरे बस से बाहर है। अच्छा, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं, जस्ट टू बी रियलिस्टिक, कभी कभी अल्लाह की तरफ से ऐसा मसला आ जाता है कि वाकई आपके बस से बाहर होती है चीज, लेकिन बहुत कम, वो बड़ा रेयर सिचुएशन होती है। जो ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल वाले होते हैं वो कंट्रोलेबल माइंडसेट के कायल होते हैं, वो कहते हैं देयर इज समथिंग आई कैन डू, कुछ तो मैं कर सकता हूं ना। और हमारा दीन इसी की तलकीन करता है। देखें, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को मैंने आपको लास्ट टाइम भी मिसाल दी थी, जब वो दरख्त के नीचे थी और वो चाइल्ड बर्थ की पेन भी हो रही थी, और हजरत ईसा वाज अबाउट टू बी बॉर्न, नेचुरल बर्थ थी, तो उनको चाइल्ड लेबर की पेन हो रही थी बहुत ज्यादा, और वो उनके मुंह से जुमला निकल गया, काश मैं एग्जिस्ट ही ना करती, काश मैं मर जाती। ये हजरत मरियम का जुमला है, ठीक है। तो उस टाइम जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उनको बशारत दी, काउंसलिंग की उनकी, और कहा आप घबराएं नहीं मरियम, आप ऐसा करें इस दरख्त को हिलाएं तो ऊपर से खजूर गिरेगी, आप वो खजूर खा लें। तो इससे साबित होता है कि यू शुड डू समथिंग, ठीक है। और देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, ट्रस्ट मी, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। कभी भी ये ना सोचे मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने माइंड को इस तरह बनाएं कि देयर इज ऑलवेज समथिंग आई कैन डू, आई कैन टॉक टू समवन। कुछ नहीं कर सकते, चले सजदा तो कर सकते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते, रो तो सकते हैं ना, रोना भी देयर इज समथिंग यू कैन डू, ट्रस्ट मी, रो तो सकते हैं ना, लेकिन अल्लाह के आगे, मखलूक के आगे नहीं, अल्लाह के आगे रो तो सकते हैं, रो ले, अल्लाह ताला सुनेंगे, अल्लाह आपकी फीलिंग क्यों नहीं देखेंगे। तो देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। कभी भी अपने जहन को ये ना बनाने दें कि देयर इज नथिंग आई कैन डू फॉर दिस, नो, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। वो अब व्हाट यू कैन डू ये आपको तलाश करना है, ये आपको देखना है। थोड़ा सा तना हिलाएंगे, खजूर गिर जाएगी। इससे तो ये मिसाल मिलती है मरियम के वाकये से, ठीक है। तो ये 4 हमने कंपैरिजन्स किए। दोबारा बताता हूं, पेसिमिस्ट जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को परमानेंस के एंगल से देखते हैं। नंबर 2, परवेसिव यूनिवर्सल अप्लाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है हर डिपार्टमेंट में, एक में नहीं है, अगर मैं एक चीज में निकम्मा हूं तो हर चीज में निकम्मा हूं, ठीक है, वो इस तरह देखते हैं। नंबर 3, पर्सनल बहुत लेते हैं, जिससे वो एंग्जाइटी में बहुत चले जाते हैं, मेरी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट है, मैं बीमार हूं इसमें भी मेरी फॉल्ट है, हालांकि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है, ठीक है ना। वो हर चीज को इस तरह ले रहे होते हैं। नंबर 4, अनकंट्रोलेबल, वो कहते हैं देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड, ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं, ये एक माइंडसेट है, वो टेम्परेरी देखते हैं प्रॉब्लम को, दिस विल पास, इंशाल्लाह प्रॉब्लम है, टाइम विल हील दिस, अल्लाह ताला बेहतरी ले आएगा इसमें, और ऐसा ही होता है, ट्रस्ट मी। आप 2 साल पुराना मसला जहन में लाए, वेयर इज इट, है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। लोकल, यूनिवर्सल नहीं अप्लाई करते, लोकल अप्लाई करते हैं। जो प्रॉब्लम है बस उसी को कंसिडर करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, उस प्रॉब्लम को दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर लेते, समझ रहे। और जो प्रॉब्लम होती है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जरूरी नहीं अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे फैमिली पर्सन भी, ठीक है, या जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे फैमिली पर्सन है तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। आपको बिजनेस लर्न करना पड़ेगा, आपको बिजनेस में इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। या आप अगर बिजनेसमैन अच्छे, फैमिली मैन अच्छे नहीं है तो आप फैमिली में इंप्रूव करेंगे, लेकिन आप अप्लाई कर ले, चूंकि मैं फैमिली मैन अच्छा नहीं हूं, मैं बिजनेसमैन भी नहीं अच्छा बन सकता, ये यूनिवर्सल अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है। तीसरा, पर्सनल, वो पर्सनल नहीं लेते चीजों को, वो चीजों को कुछ रीजन देते हैं, और रीजन देना ये बिल्कुल जायज है। मैं आपको इसका एक छोटा सा इसकी दलील देता हूं। आपको पता है हजरत मूसा की हजरत आदम से मुलाकात हुई थी बरज़ख में। हजरत मूसा, सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा ने अल्लाह से ख्वाहिश की कि अल्लाह हजरत आदम को जरा मेरे सामने करें। हजरत मूसा बड़ी जलाली तबीयत के थे, ठीक है। तो हजरत आदम को मिलवाया हजरत मूसा से अल्लाह ताला ने बरज़ख में। अल्लाह ताला जाहिर है
मुलाकात करवा सकता है। तो आदम से मूसा इस्लाम ने पूछा, आर यू एडम फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स? तो हज़रत आदम ऊपर से आए, ठीक है, कि मेरा बच्चा मुझे ही बात कर रहा है। उन्होंने कहा, आर यू मूसा, मूसा बनी इसराइल? तो वो कहते, यस आई एम मूसा, मूसा बनी इसराइल। कहते, क्या बात है? कहते, आपने क्यों उस दरख्त से खाया? ये सही हदीस है, क्यों उस दरख्त से आपने खाया? आपकी वजह से बनी इसराइल मेरे गले पड़ गई। ये बिल्कुल उनके अल्फाज में सही हदीस है। तो हज़रत इस्लाम मुस्कुराए, कहते कि तुम्हारे पे किताब नाजिल हुई है मूसा, तुम पे किताब नाजिल हुई है। मतलब बताना चाह रहे, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पे किताब नाजिल हुई है, तुम किताब पढ़ते हो? कहते मैं पढ़ता हूं। उसमें क्या समझ लगी तुम्हें? मतलब आदम की स्टोरी मौजूद है तोरा में, क्या समझ लगी तुम्हें? तो मूसा इस्लाम शर्मिंदा हो गए एकदम। कहते वी वर मेंट टू कम हियर, आपका कसूर नहीं था, इस दुनिया में हमने आना था। आदम ने तो तौबा कर ली थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना। ये तो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिनल सिन, आदम का सिन हम सब बियर कर रहे हैं, ये इस्लामिक नहीं है। तो हजरत आदम ने कहा कि मेरे बच्चे, मेरा गुनाह माफ हो चुका है, वी वर मेंट टू कम हियर। इससे उलमा ने एक अकीदा निकाला है कि जो इंसान तौबा कर चुका हो वो बात तकदीर पे डाल सकता है, ये एक हीलिंग है। तकदीर पे बात डालना क्या है? हीलिंग। लेकिन जो मुजरिम है वो नहीं। नेतन्याहू ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने लिखा हुआ था मैंने बच्चे मारने गजा के, ठीक है, मुजरिम नहीं कह सकता। कौन कह सकता है? जो तौबा कर चुका है। जैसे आदम इस्लाम तौबा कर चुके थे, उन्होंने बात किस पे डाल दी? तकदीर पे, कि मेरे बच्चे ये तो होना था, दुनिया में हमने आना था, मेरा कसूर नहीं है, वी वर मेंट टू कम है। तो हज़रत मूसा को बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक लाइफ थिंकिंग स्टाइल है। हज़रत आदम सिखा रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बाकायदा इंसानियत को, कि यू शुड फाइंड रीजंस फॉर व्हाट हैपेंड विद यू। और ये बाकायदा एक थेरेपी है साइकोलॉजी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी से कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट आपके साथ क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम को एक मीनिंग देता है और आपकी प्रॉब्लम को रीजंस देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम का एक मकसद समझ आ जाता है और आप में मोटिवेशन आ जाती है प्रॉब्लम को फाइट करने की, ठीक है। जैसे नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि हम होते तो हम शायद खुदकुशी कर लेते। यकीन करें, नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन नबियों ने उनमें मीनिंग ढूंढा है, उन प्रॉब्लम्स में। दे फाउंड मीनिंग इन दोज प्रॉब्लम्स और फिर वो आगे बढ़े। यही ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल है। फाइंड अ रीजन, फाइंड अ मीनिंग, ठीक है। देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। तना हिलाओ, कुछ ना कुछ गिर जाएगा। दरख्त का तना हिलाओ, कुछ गिरेगा और उससे तुम आगे बढ़ोगे। तो ये चार इंशाल्लाह हमारा गोल है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बनाना, और इस पे भी मेहनत है। ये सोच सोच के, ये अपने आप को ग्रो कर करके, एक्सरसाइजेस कर करके बनाना पड़ता है। ये बात याद रखें कि ब्रेन ग्रो करता है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है आपकी बॉडी का, इन दिस सेंस, जो प्लास्टिक है, जो अपने आप को तब्दील करता है। ओके, बाकी ऑर्गन स्टैग्नेंट है, बड़े होते हैं छोटे होते हैं, वो एक अलग बात है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है बॉडी का जो अपनी बकायदा फंक्शंस को भी तब्दील करता है, ग्रो भी करता है। कैसे? ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे वो न्यूरॉन्स बन जाते हैं, वैसे पाथवेज बन जाते हैं ब्रेन के, ठीक है। जैसे अक्सर मैं एक मिसाल देता हूँ, सड़क बनती है ना, तो ब्रेन बकायदा सड़कें बनाता है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर थिंकिंग। जो आप ज्यादा सोचेंगे उसकी सड़क बनती जाएगी, उसका पाथवे बनता जाएगा, और वो फिर आपकी सोच बनती जाएगी। ऑप्टिमिस्ट बनने के लिए देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात करूंगा क्लास का इख्तिताम करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा उसूल बता दिया जो आज साइकोलॉजिस्ट बताते हैं और रिसर्च बेस्ड बात है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, सबर कैसे आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सबर सबर करने से आएगा। इतना खूबसूरत जवाब, इतना पिन पॉइंट, इतना टू द पॉइंट जवाब। इसी तरह एक सहाबी पूछा, या रसूलल्लाह, बर्दाश्त कैसे आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्दाश्त करने से आती है। टू द पॉइंट जवाब है, ठीक है। यही माइंड साइंसेस है कि जो चीज आप करने लग जाएंगे उसके आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस। जैसे मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल से देता हूँ, आज हमारे साथ हुसैन भाई भी मौजूद है, ये पाकिस्तान टीम के माशाल्लाह हुसैन तल्लत भाई आज हमारे पास हैं, हमारे दोस्त हैं, और इनके लिए दुआ करें अल्लाह इन्हें सेहत दे, इंजरी हुई है। तो मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, हुसैन भाई भी क्रिकेट खेलते हैं, कि आप प्रैक्टिस कर करके 10 साल बाद भी आपको बॉल पकड़ाई जाए ना, जैसे मैं बॉलर था, अभी मुझे 10 साल बाद मैंने बॉल पकड़ी, यकीन करें
हार्ड बॉल मैंने खेली इस्लामाबाद में एक मैच, तो यकीन करें वो सारी चीज मेरी आ गई, वो आर्ट जो थी, आउट स्विंग इन स्विंग, वो सब वापस आ गया, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। 10-12 साल मैंने क्रिकेट खेली है, तो इवन तो 10 साल का गैप भी आ गया है, वो चीज मसल मेमोरी कहते हैं ना, मसल मेमोरी वापस आ गई मेरी। बैट कैसे पकड़ना है, जैसे ही बैट पकड़ा मसल मेमोरी वापस आ गई, शॉट कैसे मारनी है फौरन वापस आ गई बात। ओके, यही बात है, जो चीज आप प्रैक्टिस करेंगे वो वापस आएगी। सब्र को प्रैक्टिस करेंगे, बर्दाश्त को प्रैक्टिस करेंगे, ऑप्टिमिज्म को प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑप्टिमिस्ट बन जाएंगे। ओके, और भी इंशाल्लाह आपको टिप्स दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही। रो तो सकते हैं, रो ले, अल्लाह ताला सुनेंगे, अल्लाह आपकी फीलिंग क्यों नहीं देखेंगे। तो देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। कभी भी अपने जहन को ये ना बनाने दें कि देयर इज नथिंग आई कैन डू फॉर दिस। नो, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। वो अब व्हाट यू कैन डू ये आपको तलाश करना है, ये आपको देखना है। थोड़ा सा तना हिलाएंगे खजूर गिर जाएगी। इससे तो ये मिसाल मिलती है मरियम के वाकये से। ठीक है, तो ये 4 हमने कंपैरिजंस किए। दोबारा बताता हूं, पेसिमिस्ट जो लोग होते हैं वो प्रॉब्लम को परमानेंस के एंगल से देखते हैं। नंबर 2, परवेसिव यूनिवर्सल अप्लाई कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम है हर डिपार्टमेंट में, एक में नहीं है। अगर मैं एक चीज में निकम्मा हूं तो हर चीज में निकम्मा हूं। ठीक है, वो इस तरह देखते हैं। नंबर 3, पर्सनल बहुत लेते हैं, जिससे वो एंग्जाइटी में बहुत चले जाते हैं। मेरी फॉल्ट है, मेरी फॉल्ट है, मैं बीमार हूं इसमें भी मेरी फॉल्ट है, हालांकि बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है। ठीक है ना, वो हर चीज को इस तरह ले रहे होते हैं। नंबर 4, अनकंट्रोलेबल, वो कहते हैं देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। ऑन द अदर हैंड, ऑप्टिमिस्ट जो होते हैं, ये एक माइंडसेट है, वो टेम्परेरी देखते हैं प्रॉब्लम को, दिस विल पास, इंशाल्लाह प्रॉब्लम है, टाइम विल हील दिस, अल्लाह ताला बेहतरी ले आएगा इसमें। और ऐसा ही होता है, ट्रस्ट मी। आप 2 साल पुराना मसला जहन में लाए, वेयर इज इट, है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, लोकल, यूनिवर्सल नहीं अप्लाई करते, लोकल अप्लाई करते हैं। जो प्रॉब्लम है बस उसी को कंसिडर करते हैं, उसी पे फोकस करते हैं, उस प्रॉब्लम को दूसरे डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं कर लेते, समझ रहे। और जो प्रॉब्लम होती है ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जरूरी नहीं अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप बहुत अच्छे फैमिली पर्सन भी हैं। ठीक है, या जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे फैमिली पर्सन हैं तो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। आपको बिजनेस लर्न करना पड़ेगा, आपको बिजनेस में इंप्रूव करना पड़ेगा, राइट। या आप अगर बिजनेसमैन अच्छे, फैमिली मैन अच्छे नहीं है तो आप फैमिली में इंप्रूव करेंगे। लेकिन आप अप्लाई कर ले, चूंकि मैं फैमिली मैन अच्छा नहीं, मैं बिजनेसमैन भी नहीं अच्छा बन सकता, ये यूनिवर्सल अप्लाई कर रहे हैं आप। ठीक है, तीसरा, पर्सनल, वो पर्सनल नहीं लेते चीजों को, वो चीजों को कुछ रीजन देते हैं, और रीजन देना ये बिल्कुल जायज है। मैं आपको इसका एक छोटा सा इसकी दलील देता हूं। आपको पता है हजरत मूसा की हजरत आदम से मुलाकात हुई थी बरज़ख में। हजरत मूसा, सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा ने अल्लाह से ख्वाहिश की कि अल्लाह हजरत आदम को जरा मेरे सामने करें। हजरत मूसा बड़ी जलाली तबीयत के थे। ठीक है, तो हजरत आदम को मिलवाया हजरत मूसा से अल्लाह ताला ने बरज़ख में। अल्लाह ताला जाहिर है मुलाकात करवा सकता है। तो हजरत आदम से मूसा इस्लाम ने पूछा, आर यू एडम, फादर ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स। तो हजरत आदम ऊपर से आए, ठीक है, कि मेरा बच्चा मुझे ही बात कर रहा है। उन्होंने कहा, आर यू मूसा, मूसा बनी इसराइल। तो वो कहते, यस आई मूसा, मूसा बनी इसराइल। कहते, क्या बात है। कहते, आपने क्यों उस दरख्त से खाया। ये सही हदीस है, क्यों उस दरख्त से आपने खाया, आपकी वजह से बनी इसराइल मेरे गले पड़ गई। ये बिल्कुल उनके अल्फाज में सही हदीस है। तो हजरत इस्लाम मुस्कुराए, कहते कि तुम्हारे पे किताब नाजिल हुई है मूसा, तुम पे किताब नाजिल हुई है, मतलब बताना चाह रहे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम पे किताब नाजिल हुई है, तुम किताब पढ़ते हो। कहते मैं पढ़ता हूं। उसमें क्या समझ लगी तुम्हें, मतलब आदम की स्टोरी मौजूद है तोरा में, क्या समझ लगी तुम्हें। तो मूसा इस्लाम शर्मिंदा हो गए एकदम। कहते वी वर मेंट टू कम हियर, आपका कसूर नहीं था, इस दुनिया में हमने आना था। आदम ने तो तौबा कर ली थी, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना। ये तो क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है कि ओरिजिनल सिन, आदम का सिन हम सब बियर कर रहे हैं, ये इस्लामिक नहीं है। तो हजरत आदम ने कहा कि मेरे बच्चे, मेरा गुनाह माफ हो चुका है, वी वर मेंट टू कम हियर। इससे उलमा ने एक अकीदा निकाला है, लेकिन जो मुजरिम है वो नहीं। नेतन्याहू ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ने लिखा हुआ था मैंने बच्चे मारने गजा के, ठीक है, मुजरिम नहीं कह सकता। कौन कह सकता है, जो तौबा कर चुका है। जैसे आदम साहब तौबा कर चुके थे, उन्होंने बात किस पे डाल दी, तकदीर पे, कि मेरे बच्चे ये तो होना था, दुनिया में हमने आना था, मेरा कसूर नहीं है,
वी वर मेंट टू कम हियर। तो हज़रत मूसा को बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक लाइफ थिंकिंग स्टाइल है। हज़रत आदम सिखा रहे हैं ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बाकायदा इंसानियत को कि यू शुड फाइंड रीजंस फॉर व्हाट हैपेंड विद यू। और ये बाकायदा एक थेरेपी है साइकोलॉजी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी इसे कहते हैं। एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में साइकोलॉजिस्ट आपके साथ क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम को एक मीनिंग देता है और आपकी प्रॉब्लम को रीजंस देता है, जिससे आपको प्रॉब्लम का एक मकसद समझ आ जाता है और आप में मोटिवेशन आ जाती है प्रॉब्लम को फाइट करने की, ठीक है। जैसे नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए कि हम होते तो हम शायद खुदकुशी कर लेते। यकीन करें, नबियों पे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन नबियों ने उनमें मीनिंग ढूंढा है उन प्रॉब्लम्स में। दे फाउंड मीनिंग इन दोज प्रॉब्लम्स और फिर वो आगे बढ़े। यही ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल है। फाइंड अ रीजन, फाइंड अ मीनिंग, ठीक है। देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू, देयर इज ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। तना हिलाओ, कुछ ना कुछ गिर जाएगा। दरख्त का तना हिलाओ, कुछ गिरेगा और उससे तुम आगे बढ़ोगे। तो ये 4 इंशाल्लाह हमारा गोल है ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग स्टाइल बनाना, और इसमें भी मेहनत है। ये सोच सोच के, ये अपने आप को ग्रो कर करके, एक्सरसाइजेस कर करके बनाना पड़ता है। ये बात याद रखें कि ब्रेन ग्रो करता है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है आपकी बॉडी का, इन दिस सेंस, जो प्लास्टिक है, जो अपने आप को तब्दील करता है। ओके, बाकी ऑर्गन स्टैग्नेंट है, वो बड़े होते हैं छोटे होते हैं, वो एक अलग बात है। ब्रेन वाहिद ऑर्गन है बॉडी का जो अपनी बकायदा फंक्शंस को भी तब्दील करता है, ग्रो भी करता है। कैसे? ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जैसा आप सोचते हैं वैसे वो न्यूरॉन्स बन जाते हैं, वैसे पाथवेज बन जाते हैं ब्रेन के, ठीक है। जैसे अक्सर मैं एक मिसाल देता हूं, सड़क बनती है ना, तो ब्रेन बकायदा सड़कें बनाता है अकॉर्डिंग टू व्हाट यू आर थिंकिंग। जो आप ज्यादा सोचेंगे उसकी सड़क बनती जाएगी, उसका पाथवे बनता जाएगा, और वो फिर आपकी सोच बनती जाएगी। ऑप्टिमिस्ट बनने के लिए देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आखिरी बात करूंगा, क्लास का इख्तिताम करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा उसूल बता दिया जो आज साइकोलॉजिस्ट बताते हैं और रिसर्च बेस्ड बात है। एक सहाबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, सबर कैसे आएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सबर सबर करने से आएगा। इतना खूबसूरत जवाब, इतना पिन पॉइंट, इतना टू द पॉइंट जवाब। इसी तरह एक सहाबी पूछा, या रसूलल्लाह, बर्दाश्त कैसे आएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बर्दाश्त करने से आती है। टू द पॉइंट जवाब है, ठीक है। यही माइंड साइंसेस है कि जो चीज आप करने लग जाएंगे उसके आप आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस। जैसे मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल से देता हूँ, आज हमारे साथ हुसैन भाई भी मौजूद है, ये पाकिस्तान टीम के माशाल्लाह हुसैन तल्लत भाई आज हमारे पास हैं, हमारे दोस्त हैं, और इनके लिए दुआ करें अल्लाह इन्हें सेहत दे, इंजरी हुई है। तो मैं अक्सर क्रिकेट की मिसाल देता हूँ, हुसैन भाई भी क्रिकेट खेलते हैं, कि आप प्रैक्टिस कर करके 10 साल बाद भी आपको बॉल पकड़ाई जाए ना, जैसे मैं बॉलर था, अभी मुझे 10 साल बाद मैंने बॉल पकड़ी, यकीन करें, हार्ड बॉल मैंने खेली इस्लामाबाद में एक मैच, तो यकीन करें वो सारी चीज मेरी आ गई, वो आर्ट जो थी, आउट स्विंग, इन स्विंग, वो सब वापस आ गया, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की हुई है। 10-12 साल मैंने क्रिकेट खेली है। तो इवन तो 10 साल का गैप भी आ गया है, वो चीज मसल मेमोरी कहते हैं ना, मसल मेमोरी वापस आ गई मेरी। बैट कैसे पकड़ना है, जैसे ही बैट पकड़ा मसल मेमोरी वापस आ गई। शॉट कैसे मारनी है, फौरन वापस आ गई बात। ओके, यही बात है, जो चीज आप प्रैक्टिस करेंगे वो वापस आएगी। सबर को प्रैक्टिस करेंगे, बर्दाश्त को प्रैक्टिस करेंगे, ऑप्टिमिज्म को प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑप्टिमिस्ट बन जाएंगे। ओके, और भी इंशाल्लाह आपको टिप्स दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही।